एक बूंद चुरा ली, ये सोच के कि कुछ उससे और आगे हम लोग जा सके और अपनी बकेट भर सके। ठीक है, नाउ सी, कल हम लोगों ने अंडर द हेडिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये जाना था कि एक टर्म रहती है जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट और एक रहता है जो वेरिएबल। कांस्टेंट वो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती और वेरिएबल वो जो वेरीज होता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो क्या एक नया पैटर्न लेके आया था लीनियर इक्वेशन हमारे लिए? तो लीनियर इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a, b and c are the constant, x and y are the variables where the value of this a and b is not equals to 0. This is about a very basic knowledge about linear equations. Now when we are studying about these linear equations, अभी ये linear equations की अगर पेयर बना जाए, ठीक है, so we are solving for to find the value of variable, कि भाई वेरिएबल है, इसने वेरीज होना है, तो पर ये कहीं ना कहीं तो खुद को बताएगा ना कि मैं इसके बराबर हूँ। सो वो x एंड y की वैल्यू क्या, वो ढूंढने के लिए फिर हम लोग यूज करते हैं मे बी द साइमल्टेनियस मेथड, मे बी योर क्रैमर्स रूल। ये सब नाम बेटा आपने 10th तक के पढ़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जोर दे दो, आपको ये सब नाम धीरे धीरे रिकॉल आना शुरू। अगर नहीं भी आते सो हम लोग यहाँ पे आपको वो कवर करा के देंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ सी ऑन द बोर्ड, कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी। मान लो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस, so let's consider that two linear equations is in the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. These two are the two different linear equations. Okay, what is same here? So only variables are same. Both the equations containing the variable xy, and if these equations making a pair of equation, अगर इन्होंने pair of equation बना ली तो possibilities है बेटा, and what are that possibility? Maybe that linear equations which is on the line may be the parallel to each other, may be the perpendicular to each other, or maybe the intersecting each other. Okay, so what happen exactly when we are solving these linear equations in a two variables? So we get unique solution. So when we are, how we can identify कि हमें इससे unique solution मिला है? तो if in the given equations a1, a2 which are the coefficient of x not equals to b1, b2, they are the coefficient of y, that is the ratio of coefficient of x is not equals to ratio of coefficient of y. अगर वो equal नहीं है, it means after solving the equation gives us unique solution. Okay, now come to the second point, an infinite number of solution. If it happens that is all the coefficients of x, y and the constant are same, that is a1, a2 is equal to b1, b2 and that is equal to c1, c2. It means ratio are in the proportional of x, y and the constant, then that time that solution is called an infinite number of solution. Third one, if a1, a2 that is ratio of coefficients of x is equal to ratio of coefficient of y but not equals to the ratio of constant.
and when this case is occurs, that time the equations has no solutions. Get it my point? There are three types of solutions for any linear equations. Number one, unique solution. Number two, an infinite number of solutions. And number three, has no solution. देखो बेटा, ये आपने 9th में भी पढ़े हो, linear equation in two variable. फिर आप 10th में आने के बाद भी आपको ये सब टर्म हुए हैं, that is pair of linear equation in two variable. यही टर्म हमें 11th में भी काम में आएगी, ये 12th में भी काम में आएगी, even though when we are preparing for the NDA exam और JEE exam, ये वहां पे भी आ जाते हैं in the form of linear inequations, that is linear programming problem, जिसको हम लोग बोलते हैं on the higher level LPP, linear programming problem. और वहां पे हम लोग ये सभी चीजों का यूज करते कि भाई मेरा सॉल्यूशन यूनिक कब, मेरे पास के इक्वेशन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब, और कब मेरे इक्वेशंस को सॉल्यूशन ही नहीं. और उसके लिए अपन बहुत सारी दुनियादारी नहीं करते बैठे, हम लोग ट्रिक्स यूज करते हैं, और वो ट्रिक्स देता है हमको ये लोअर क्लासेस का मैथ्स. ओके, तभी देखते हैं इसको एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स में कैसा यूज करना. अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या होता है ये A1 A2 B1 B2 C1 C2, और कैसे कंपैरिजन करना पड़ता है, और फिर कैसे पता चलता है कि इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कि लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है. वो सब चीजें बेटा ये एक टेबल में से आपको आ जाएंगे. सिर्फ टेबल में क्या हो रहा और वो वैसा ही क्यों हो रहा, ये चीजें अपने दिमाग में डालना सीख. फर्स्ट मैंने पेयर बना ली, लाइंस इक्वेशन, उसकी मैंने बना ली पेयर. तो पेयर बनाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत, तो सेम वैसे ही मैंने दो लिख लिए. फर्स्ट लिखा x minus 2y is equal to 0. दूसरा 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. दोनों के दोनों इक्वेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर कर लो कि क्या वो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्मेट में है, तो x. बट व्हाट इज मिसिंग in the first equation? Constant is missing, so the value of A1 is 1, the value of B1 is minus 2. In the second equation, the value of A2 3, the value of B2 4, and the value of constant it's a minus 20. फिर से मैंने जो बोला है उसको हम लोग एक बार करके देखते. This is the two equations which are in the form of x minus 2y is equal to 0. Second is in the form of 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. These two are the equations. Now let compare the equation with the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Second equation compare with the linear form a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, coefficients को कंपेयर करते हैं. सो कोएफिशिएंट ऑफ दिस, x के पास तो लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, तो उसको कोएफिशिएंट 1 है. इसका मतलब इट मींस द वैल्यू ऑफ a1 is equal to 1. Second comparison, the value of b1 is equal to minus 2. This is our second, that is b1 is equal to minus 2. Now here, no any constant, it means the value of c1 is equal to 0. Now let's go to second. Compare again. The value of a2 is equal to 3. The value of b2 is equal to 4. The value of c2 is equal to minus 20. These are the value. Now first value put up करनी है a1, a2. The value of a1 is 1.
the value of A2 3. So my first ratio is 1/3. समझा? सेकंड पे चलो, B1 की वैल्यू कितनी है? तो B1 की वैल्यू है -2. B2 की वैल्यू कितनी है वहां पे? 4. क्या इसका कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म है -2/4 का? तो S -2/4 का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है बेटा? तो 1/2. C1 की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पे? 0. The value of C2 -20. If numerator is 0, then ratio becomes 0. तो ये हुआ 0. कंपैरिजन कर लो, क्या कुछ कंपैरिजन में मिल रहा? A1 A2 की वैल्यू 1/3, B1 B2 की वैल्यू -1/2. C1 C2 को तो वैल्यू ही नहीं मिली, 0 ही बन गया हो. तो क्या ये दो रेशो इक्वल है? नहीं. अगर ये रेशो इक्वल नहीं तो कंपेयरिंग द रेशियोज में आपको मिल रहा A1/A2 is not equals to B1/B2. समझ में आया? अभी बताओ, A1/A2 is not equals to B1/B2. ऐसी अगर कंडीशन आती है तो ऑल्जेब्रिकली हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं? क्या इसको यूनिक सॉल्यूशन है? क्या इसको सॉल्यूशन ही नहीं है? या फिर इसको बहुत सारे सॉल्यूशंस है? लेट्स थिंक ऑन इट. तब तक के दूसरे पे चले जाते. सेकंड इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ A1 इज 2, द वैल्यू ऑफ A2 4. नाउ 2/4 is nothing but the 1/2. Then the value of B1 3, the value of B2 6. Again the simplified form 1/2. The value of C1 -9. The value of C2 -18. Again the simplified form 9 2s are 18. So 1/2. Now क्या ऑब्जर्व किए? A1 A2 का रेशो 1/2, B1 B2 का रेशो 1/2, C1 C2 का रेशो भी 1/2. अरे ये क्या हो गया? तीनों भी रेशो इक्वल हो गए यहाँ पे. तो सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ A1 A2, B1 B2 और क्या सेम दिख रहा? ये यानी C1 C2. सो दिस इज इक्वल टू C1 C2. आई बात समझ में? थर्ड इक्वेशंस पेयर. पहली पेयर x plus 2y minus 4 is equal to 0. सेकंड पेयर twice x plus 4y minus 12 is equal to 0. चलो फिर से फटाफट कंपैरिजन करते हैं अपन. क्या मिला? कोएफिशिएंट ऑफ x कुछ भी नहीं तो 1 बोल दो उसको, यानी 1. B2 के लिए B1 के लिए कंपैरिजन किए, सो वैल्यू 2. देन C1, यस यहाँ पे कांस्टेंट है, सो C1 is equal to -4. सेकंड साइड चलो बेटा. The value of A2 2, the value of B2 4 and the value of C2 -12. ये तो हो गया एक छोटा सा बेसिक लेवल पे था, इसलिए इतना करें फिर A1 A2 B1 B2. अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, नाउ वी आर द स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, तो 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सब कुछ आंखों ही आंखों में कर देना. ये इतना नाटक ही नहीं करना, रफ में जाओ फेयर में लाओ, ठीक है ना. सो लेट्स पुट अप द वैल्यूज. कौन मिला रहे A1 A2 के लिए? तो 1/2. क्या मिला आपको B1 B2 के लिए? सो 2/4. क्या कंपैरिजन रे? 2/4 को क्या लिखा सकते हैं सिंप्लीफाइड? 1/2. C1 C2 -4/-12 सिंप्लीफाइड 1/3. कौन कौन सिमिलर ढूंढना तो पड़ेगा कि सिमिलर कौन कौन. क्या सिमिलरिटी आ गई? फर्स्ट में कोई इक्वल नहीं था, सेकंड में पता चला तीनों इक्वल आ गए, और थर्ड में क्या पता चल रहा कौन इक्वल है? A1 A2. किसके साथ इक्वलिटी बना रहे? B1 B2. क्या ये दो रेशियो C1 C2 के इक्वल में? तो नहीं. इट मींस A1 A2 is equal to B1 B2 but not
C2। ये हो गया। अभी निकालते हैं इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। क्या कुछ समझ में आया हमको वो? ठीक है, तो क्या इंटरप्रिटेशन निकल गया हमारा कि अगर रेशियोज इक्वल ही नहीं तो क्या बन जाता है? इट हैज द यूनिक सॉल्यूशन। एंड व्हेन द इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब हुआ बेटा लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा। ठीक है, उसके बाद तीनों रेशियोज अगर इक्वल हो गए, इट मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और वो कब होगा? व्हेन द लाइंस आर कोइंसिडेंट, पूरे सेम है। उसका सिंपलीफाइड फॉर्म लाने के बाद फिर से सेम ही सेम आ रहा है। सो हमको क्या मिल सकता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। उसके बाद कि दो रेशियो इक्वल है पर थर्ड वाले रेशियो के साथ इनइक्वालिटी फॉर्म हो रही, तो वहां पे हो जाता है इट हैज नो सॉल्यूशन एंड सच टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो ये आप आपके दिमाग में आगे के आने वाले 2 साल के लिए बात फिट ही कर लेना। क्या है? आपका एक रेशियो काम बना रहा और वही रेशियो अगर इक्वल नहीं बनता है तो पूरा काम बिगाड़। तो एक रेशियो की वजह से आपका इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं होना, क्या फर्क पड़ रहा है ना, इधर तो इज इक्वल टू है, इधर इज इक्वल टू है, घुसा देते ना इसको उसको, पर वैसा नहीं। आप यहाँ पे कंपैरिजन में देखो, हर एक बार कुछ ना कुछ कम ज्यादा हुआ। When it has a unique solution, कोई सेम नहीं। When it all are equal, तो many solutions। और जब दो इक्वल है और एक ही अनइक्वल है तो इसका मतलब it has no solution। This is all about the linear equations। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।